تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ ابو سفیان نعمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میوزک کلاسز۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں درخشاں بک کا چیپٹر نمبر 4 پڑھانے والا ہوں، جس کا نام ہے کٹی ہوئی شاخ، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر قمر جہاں صاحب۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے اور یہ بہت ہی ضروری ہے درخشاں اردو والوں کے لیے، کیونکہ یہ چیپٹر سے لگ بھگ 4 سے 5 سوال آتے ہیں بورڈ ایگزام میں۔ تو آج میں انہی کے اوپر بات کرنے والا ہوں۔ آخر کٹی ہوئی شاخ کا مطلب کیا ہے، یہ کیوں اتنا ضروری ہے اور یہ ہم لوگوں کو کیوں پڑھایا جاتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ تو ان سب باتوں کو کرنے سے پہلے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ تو یہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو آپ کیا کریں، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر بیچ میں آپ اس ویڈیو کو چھوڑ دیتے ہیں یا اسکپ کر دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ پھر ایک بورڈ ایگزام میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ تو آئیے، میں یہ بورڈ پر لکھے ہوا ہوں، یہ بہت ہی موسٹ وی وی آئی ہے۔ جو وی وی آئی ہے میں نے یہاں پر بورڈ پر لکھ دیا، جو بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ پورے چیپٹر میں اگر کوئی کوشچن آئے گا تو انہی سب میں سے کوئی نہ کوئی آئے گا۔ میں نے یہاں بھی وی وی آئی ڈال دیا ہے، یہاں بھی وی وی آئی ڈال دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیپٹر بہت ہی زیادہ وی وی آئی، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اور میں یہاں پر یہ بھی لکھا ہوں 100 میں سے 90 پلس، یعنی کیا کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیا تو میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو بورڈ ایگزام میں جو اردو کا نمبر ہے وہ 90 پلس ہی آنے والا ہے، اگر آپ میری اس ویڈیو کو روزانہ دیکھتے ہیں۔ تو آئیے ہم ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اب چاہے جیسے بھی کیجیے آپ کیجیے اور اپنے دوستوں سے بھی کرائیے۔ آئیے میں یہ چیپٹر اسٹارٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لکھا سبق نمبر 4۔ سب سے پہلا سبق ہے حمد خدا عز و جل، دوسرا ہے بھابی جان، تیسرا ہے فرار اور یہ چوتھا چیپٹر ہے جس کا کیا نام ہے، کٹی ہوئی شاخ۔ شاخ بولتے ہیں پیڑ کی ڈھلی کو۔ کس کو بولتے ہیں؟ پیڑ کی جو ڈھلی ہوتی ہے اس کو شاخ بولا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی پیڑ کی ڈھلی کو الگ کر دیا جائے تو جیسے نہیں جڑتا، اسی کے اوپر یہ کیا ہے، پورا چیپٹر ہے۔ تو آئیے ہم تفصیل سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف کے بارے میں جانیں گے۔ مصنف آخر کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیے، مصنف کہتے ہیں رائٹر کو۔ مصنف رائٹر کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ویڈیو میں پڑھ چکا ہے کہ جو بھی چیپٹر ہے اس کے رائٹر کا نام اگر آپ کو یاد ہے تو سمجھیے کہ آبجیکٹیو میں 1 نمبر آپ کو مل رہا ہے، کیونکہ بہت ساری جگہ ایسا ہوتا بھی ہے اور ایسا ہوا بھی۔ پچھلی سال بھی ایگزام میں ایسا ہوا ہے کہ چیپٹر کے ساتھ ساتھ رائٹر کا نام پوچھا گیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قمر جہاں کے بارے میں جانتے ہیں۔ قمر جہاں کی پیدائش یہاں پر ہے، یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو مصنف یعنی قمر جہاں، لکھنے والے لیکھک، اس کے بعد ہے پیدائش تقریباً 1951 یا 52 میں۔ یہ جو بیچ میں مائنس کا نشان ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یہ جو لکھا گیا ہے آپ اس کو پختہ ذہن نشین کر لیں، تبھی جا کر آپ اس چیپٹر کو پختہ یاد کر پائیں گے۔ تو یہاں پر میں نے جو وی وی آئی ہے وہ لکھ دیا ہے، تقریباً کیا ہے 1951 یا 52 میں۔ آپ سے جتنا سوال کیا جائے اتنا ہی کا جواب دینا ہے اور آپ کو یہی ضروری ہے۔ دوسرے میں لکھا ہوا ہے آبائی وطن، یعنی آبائی وطن کا معنی کیا ہوتا ہے، اپنا گاؤں، اپنا شہر۔ یہ کس گاؤں میں رہتی تھی؟ تو ان کا گاؤں کیا ہے، سمستی پور ضلع۔ سمستی پور ضلع، مردم خیز گاؤں بزرگ دوار۔ کیا ہے؟ سمستی پور ضلع میں آتا ہے مردم خیز گاؤں بزرگ دوار۔ یہ یہاں کی رہنے والی تھی، ان کا اپنا گھر تھا۔ آگے کیا ہے، والد کا نام، یعنی ان کے ابو کا نام کیا ہے، سید عطاء الحق صاحب۔ کیا نام ہے؟ سید عطاء الحق صاحب، قمر جہاں کے ابا کا نام۔ آگے ہے پہلی کہانی۔ پہلی کہانی ان کی کیا، جنون وفا۔ پہلی کہانی کیا ہے، جنون وفا۔ اور اس کے افسانے کتنے ہیں؟ ویسے تو ان کے افسانے 3 ہیں۔ سب سے پہلا ہے چارہ گر، جو 1938 عیسوی کو شائع ہوا یعنی اپلوڈ ہوا۔ دوسرا ہے اجنبی چہرے، یہ جو 1991 میں اپلوڈ ہوا، شائع ہوا۔ اور یاد نگر جو ہے یہ اب یہ لکھ رہی ہیں، زیر اشاعت ہے، یعنی یہ لکھ رہی ہیں اور ان کا انتقال ابھی تک نہیں ہوا۔ یہاں پر لکھا ہے قلمی سفر جاری ہے، یہ میں اپنے من سے لکھ دیا ہوں، یہ آپ کے بک میں بھی ہے لیکن پھر بھی یاد کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے لکھ دیا ہوں تاکہ آپ لوگ کوئی کنفیوز نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ان کے بارے میں یہ بتا دیا گیا جو وی وی آئی تھا، جو موسٹ امپورٹنٹ تھا۔ اب میں ان کے بارے میں تھوڑی سی اور ڈیٹیلز دے دیتا ہوں۔ یہ بچپن سے ہی ان کا گاؤں، ان کا شہر، ان کا خاندان کیا ہے، پڑھنے لکھنے میں آگے ہے۔ یہ دلچسپی ہے ان کا پڑھنے لکھنے سے ہی بہت پہلے سے۔ اب انہوں نے اپنی کریئر کا آغاز کب کیا؟ تو کریئر کا آغاز یہ سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور سے اس نے کیا اپنے کریئر کا آغاز کیا، یعنی انہوں نے
अपनी मुलाजिमत कहाँ की? सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर। उसके बाद क्या हुआ कि आगे तरक्की कर करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू तक के ओहदे को संभाला। उसके बाद अफसाना निगारी के अलावा आपके मुतअद्दिद तनकीदी मज़ामीन के मजमूए शाये होकर मंजर आम पर आ चुके हैं। यानी ये तनकीद भी क्या करती थी, शायरी भी और गज़ल वगैरह सब लिखती थी। आगे कह रहे हैं कि ये जो है ना मयार कलाम अब्दुल्ला यानी अख्तर शेरानी की जिनसी व रूमानी शायरी, मयार कलाम अब्दुल्ला, हाफिज मशकी, पूरी तहकीक व तदरीन कलाम और हरफ आगाही आपकी तनकीदी मज़ामीन है। देखिए तनकीद किसको बोलते हैं ये मैं वाज़ेह तौर पर बता दूं। तनकीद कहते हैं, इसका सीधा सिंपल सा जो है जवाब है वो है चेक करना। जैसा कि आप कोई राइटिंग लिखे बुक में या बुक से राइटिंग लिखे या कोई भी चीज लिखे तो आप किसी न किसी उस्ताद को, अपने टीचर्स को दिखाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उनको चेक करते हैं। जो लफ्ज नहीं होना चाहिए था उनको हटा देते हैं, जो लफ्ज होना चाहिए था अगर नहीं है तो उनको जोड़ देते हैं। इन्हीं को चेक करने को तनकीद कहते हैं। तो जो बड़े बड़े शायर होते हैं वो अपने से बड़े को, अपने से सीनियर को वो अपनी बुक दिखाते हैं और क्या होता है कि वो जो गलत होता है उनको सही करते हैं, दुरुस्त करते हैं। इन्हीं को तनकीद कहते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी किताबें तनकीद की है, वो यहाँ पर लिखा हुआ। आगे लिखा कलमी सफर अभी भी जारी है, यानी कमर साहब जो है वो इंतकाल उनका नहीं हुआ है। आगे देखिए कटी हुई शाख का जो पूरा वजाहत है वो अपने घर के ऊपर है। घर के ऊपर है कि जो शख्स, जो लड़के या जो बेटियां, जो बेटे घर से बिना बताए या फिर घर के लोगों को तकलीफ पहुंचाने के बावजूद अपने घर से चले जाते हैं, रुकने के बावजूद नहीं रुकते हैं, अगर घर की हालत कुछ खराब है वो अपने मन से घर से निकल जाते हैं, तो ये क्या होता है, घर वालों को ठेस पहुंचता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर कटी हुई शाख का जो पूरा मामला है, यहाँ पर एक आदमी है, एक लड़का है, उसका नाम को जाहिर नहीं किया गया है। एक लड़का है जिसको, जो हमेशा से गांव में रहता था और उनके दोस्त वगैरह क्या थे, बाहर विदेश रहा करते थे। एक दिन उसके दोस्त का कॉल आया और बोला कि भाई तुम कब तक तालाब के मेंढक की तरह घर पर बंधे रहोगे और चप्पलें तोड़ते रहोगे? तुमने इतनी सारी डिग्रियां हासिल इसीलिए की है कि घर बैठे रहो और चप्पलें तोड़ते रहो? कभी तुम बाहर आओ, विदेश आओ और अच्छी खासी जिंदगी गुजार कर देखो, कितनी हसीन दुनिया है। जब उनके दोस्त का कॉल कटा तो उनके जहन में बहुत सारी प्लानिंग चलने लगी और वो खुश हो गया। उसने सोचा कि वाकई क्या मैं सिर्फ मेंढक ही बनकर अपने घरों में रहूंगा, एक तालाब में रहूंगा? मुझे भी बाहर जाना चाहिए और घूमना चाहिए और क्या करना चाहिए, इस हसीन और रंगीन दुनिया को देखना चाहिए। उनकी ये प्लानिंग उनके लिए बहुत खतरनाक साबित होना था, ये वो नहीं जानता था। मेरे भाई उसने क्या किया, उसने वीजा अप्लाई कर दिया और वीजा अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि जब उनका वीजा आ गया तो वो और खुश था। उन्हें अपने घर की कोई फिक्र नहीं थी। उनकी माँ बूढ़ी थी, वो बीमार थी, उनके अब्बू बीमार थे, लेकिन उन्हें किसी की फिक्र नहीं थी। वो सिर्फ इतना जानते थे कि हम बाहर जाएंगे और कमाएंगे। उनके जहन में बस यही ख्यालात आते रहे। उसके बाद अचानक क्या हुआ कि वो घर से चले गए, सबको छोड़ता हुआ, पूरी हर चीज को छोड़ दिए, पूरी रिश्तेदारी तोड़ दी, अपने घर के हर इंसान को छोड़कर भूल कर चला गया। यहाँ तक कि उसकी माँ बीमार थी, उनको ये भी याद न रहा। उसके बाद वो एयरपोर्ट गया, वो एकदम ख्याली पुलाव पका रहा था कि हम आसमानों में घूमेंगे, बहुत सारी चीजें उनके जहन में घूम रही थी। इसी तरीके से जब हवाई जहाज हवाई अड्डे पर पहुंची, उनके ऊपर वो बैठ गए, तो जैसे ही हवाई जहाज उड़ी तो वो सातों आसमान का सैर करने लगा। वहां की जो एयर होस्टेस होती हैं वो बहुत ही खूबसूरत होती हैं। उनके सामने एक बहुत दिलनवाज मुस्कुराहट के साथ उनके पास कोई प्याला पेश किया तो उनके मन में लड्डू फूटने लगा। वो ये सोचने लगी कि ये एयर होस्टेस हूरें हैं और ये मेरे लिए आई हैं, लेकिन ये गुमान उनका गलत था। उसी दिलनवाज मुस्कुराहट के साथ बगल वाले पैसेंजर को भी उसी तरीके से वो मुखातिब हुई, तो वो क्या हुआ, उनके जो ख्याली पुलाव थे वो फट गए, यानी खराब हो गए। तब उनको समझ में आया कि अच्छा तो इनका यही काम ही है कि जितने पैसेंजर होते हैं उनको अच्छे से तरबियत के साथ उसको क्या करें, उससे मुखातिब हों। इसी तरीके से जब वो अपने विदेश पहुंच गया और वहां पर काम धंधा करने लगा तो पहला तो सबको मजा आता है। अगर हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो क्या होता है, पहली जगह जाते हैं तो बहुत घूमते हैं, बहुत ऐशो आराम करते हैं, लेकिन जब हमारा मुकम्मल तौर पर वहां रहना सहना होने लगता है तब क्या होता है, हमारा दिल भर जाता है, हमारा दिल उकता जाता है। फिर हम क्या सोचने लगते हैं कि अब तो इससे मन भर गया। तो उनका एक दोस्त था असद, जो वहीं रहता था और उन्हीं की कंपनी में काम करता था। उनसे वो पूछने लगा कि भाई यहाँ के लोग कैसे मुतमईन रहते हैं, यहाँ के लोग कैसे मुतमईन रहते हैं? मैं जानता हूं कि यहाँ पर पैसे ज्यादा हैं और ये जो आदमी गया था विदेश अपने घर को छोड़कर, वो इतना पैसा कमाया कि कुछ ही दिनों में इसने अपनी पर्सनल गाड़ी ले ली,
बंगला ले लिया, यानी बहुत सारा ऐसा काम कर लिया, लेकिन उसने हर चीज खरीद तो लिया, लेकिन वो मोहब्बत, वो रवैया, वो घर की यादें वो खरीद नहीं पाया। बहुत दिनों के बाद असद से पूछा, भाई यहाँ के लोग तो रोबोट बने हुए हैं, सिर्फ जो उनको काम कर दे दिया जाता है सिर्फ वही करने लगते हैं, मेरे भाई यहाँ पर लोग कैसे मुतमईन हो जाते हैं? तो असद ने बहुत ही सोच समझ कर उनको जवाब दिया कि जहां पर पैसा होता है, मैं खुलासा बता रहा हूं, जहां पर पैसा होता है वहां पर आराम और सुकून नहीं होता। असद और वो लड़का जहां काम करता था, वहां के लोग और वहां के जो मुलाजिमीन थे जो वर्कर थे, वो काम करने जाते थे तो रात को इतना हो जाता था कि उनके बीवी बाल बच्चे भी सोते हुए पाते थे, और वो सवेरे इतने जल्दी चले आते थे कि उनके बीवी बाल बच्चे और सारी दुनिया सोते ही रहती और वो अपने काम पर दोबारा लौट जाते थे। यानी उन्हें इतनी मोहलत भी नहीं मिलती थी कि वो अपने बच्चों से, अपनी बीवियों से मुखातिब हो सके। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर इसी बात को रखा गया है कि जहां पर पैसा होता है वहां पर क्या होता है, आराम और सुकून नहीं होता, और जहां पर हमारी फैमिली होती है वहां पर अगर पैसा ना भी हो तो हम क्या करते हैं, आराम और चैन सुकून वाले जिंदगी गुजार सकते हैं। तो इसी तरीके से जब उनके अब्बा का इंतकाल हो गया तो भाई तो विदेश है, विदेश में तो 3 साल का या 4 साल का या 5 साल का वीजा लगता है, जब तक वो वक्त मुकर्रर पूरा नहीं होगा, जब तक किसी को आने की इजाजत नहीं। यहां तक कि उनके अब्बा का इंतकाल हो गया, उन्हें बहुत याद आई, बहुत रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन वापस उनको इंडिया नहीं आने दिया। इसी तरीके से जब वो घर आया तो उनको अपना घर अजीब अजीब लग रहा था। उनके घर में क्या था, एक आम का पेड़ था और शरीफे का पेड़ था, वो वैसे ही डोल रहा था। हम भी आते हैं कभी कभी गांव तो देखते हैं कि अगल बगल में जो पहले झोपड़ियां थी वो अब तब्दील होकर पक्के मकान में तब्दील हो गए, जो सड़कें कच्ची थी वो पक्के हो गए, यानी बहुत सारी तब्दीलियां गांव में आ जाती है। तो इसी तरीके से वो जब आया तो उन्होंने क्या देखा कि ये तब्दीली आ चुकी है, लेकिन पेड़ जो था आम का और शरीफे का वो वैसे ही डोल रहा है, वो वैसे ही झूम रहा है। हमारे रिश्तेदार अगल बगल के आए हुए हैं, वो हम लोगों को बड़ी गौर से देख रहा है, वो ये सोचने की कोशिश कर रहा है क्या मैं वही इंसान हूं, क्या मैं वही इंसान हूं जो पहले इस जमीन पर रहा करता था। उसकी बूढ़ी माँ पलंग पर लेटी हुई है और उसके चेहरे को कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्या ये मेरा वही बेटा है जिसको मैंने पैदा किया था, जिसको मैंने पाला पोसा था। लेकिन उस कमबख्त को इतना याद नहीं कि मेरी माँ बीमार है, उसको भी छोड़कर चला गया पैसे के लालच में। तो मेरे भाई, कहने का मकसद और मतलब कटी हुई शाख का यही है कि कभी भी चाहे कितना भी हमें जरूरी पड़ जाए, सबसे आगे हमारी फैमिली होनी चाहिए। अगर फैमिली साथ है तो फिर दुनिया के हर ऐशो आराम हमारे साथ है। सिर्फ पैसा ही हर चीज नहीं होता है। तो यहीं पर कहने लगा कि वो जब अपने वालिदैन से, अपने रिश्तेदारों से नाता तोड़कर चला गया तो क्या किसी को इंसान का दिल तोड़ने के बावजूद क्या दोबारा जोड़ता है? ऐसा हरगिज नहीं होता। एक मिसाल दिया गया यहाँ पर कि जैसे जो शीशा होता है कितना चमकदार और हसीन होता है, वो हमारे शक्ल सूरत को दिखाता है, वो असलियत को दिखाता है, लेकिन अगर उसमें दरार पैदा हो जाए तो दोबारा वो नहीं जुड़ता। इसी तरीके से वो क्या हुआ कि वो अपनी फैमिली से दूर हो गया था, सबके दिल से वो हट गया था। जैसा कि एक दरख्त है, अगर उसकी ढल्ली को काट दिया जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता, इसी तरीके से यहाँ पर इसके साथ हुआ कि यह अपनी फैमिली से दूर हो गया या अपने रिश्तेदारों से दूर हो गया, दोबारा वो उस हालत में नहीं आ सकता। हाँ, ये होता है कि नया फिर शाख निकल जाता है, लेकिन वो शाख जो उससे टूटा है ढल्ली से, वो दोबारा नहीं जुड़ता है। तो कहने का मतलब और मकसद पूरा यही था कि आज के जदीद साइंसी दौर में जो माहौल और मुआशरा, जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो किन के हो रहे हैं? आज जो मसाइल वगैरह पैदा हो रहे हैं, इन्हीं की बात क्या की है डॉक्टर कमर जहां ने अपने अफसाने के अंदर बताया है। चुनांचा ज़ेरे निसाब अफसाना कटी हुई शाख इसी पसे मंजर से मुताल्लिक है। मुताल्लिक का माना होता है उसी के हिसाब से, जिसमें एक शख्स रुपया कमाने के लिए खलीजी मुमालिक जाता है, यानी दूसरे मुल्क जाता है, रुपया तो खूब कमा लेता है, लेकिन अपने मुआशरे और तहजीब से कट कर जिस जहनी कर्ब व अज़ियत के शिकार होता है, उस कैफियत की तर्जमानी इस अफसाने में बदरजाए अत्म मौजूद है। यानी एक इंसान है, वो पैसा कमाने के लिए बाहर तो चला जाता है, दूसरे मुल्क में तो चला जाता है, लेकिन होता क्या है, वो पैसा भी कमा लेता है, लेकिन वो आराम और सुकून नहीं पा पाता जो अपने घर में रहकर इंसान कमा कर पाता है, जो अपने फैमिली के साथ रहकर इंसान पा लेता है। वो क्या हुआ, वो चैन और सुकून उसको वहां नहीं मिला। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसको जरूर शेयर करें। आइए मैं इसका सवाल और जवाब बनवा देता हूं। मैं बोलता हूं क्योंकि इतना बताया है तो आपको उम्मीद है कि समझ में आया हो गया। और जो इंपॉर्टेंट था, जो एग्जाम में आता है और आएगा, मैं वो यहां पर लिख दिया हूं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये गारंटी देता हूं, अगर आप मुझ पे यकीन रखेंगे
तो मैं ये गारंटी देता हूं कि 90+ आपका नंबर जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में। आइए मैं बता दूं, मैंने पहले भी कहा था कि बोर्ड एग्जाम वाला जितना पूछे उतना ही क्या जवाब देना है। अगर ज्यादा देंगे, ये बढ़ा चढ़ाकर 2 नंबर का सवाल या 5 नंबर में धकेल देंगे तो फिर एक भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। समझ पा रहे हैं? इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो आइए सबसे पहले, कमर जहां की पैदाइश कब हुई? ये नहीं पूछा कहां हुई, ये पूछ रहा कब हुई। तो कमर जहां की पैदाइश तकरीबन 1951 या 52 में हुई। कब हुई? कमर जहां की पैदाइश तकरीबन 1951 या 52 में हुई। ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। दूसरा में, कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? तो यहां पर लिखा हुआ है कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। ठीक है। तीसरा सवाल है, कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिला से है? गांव नहीं पूछा, क्या पूछा? किस जिला से ताल्लुक है इनका? तो समस्तीपुर जिला। आप मर्दम खेज गांव बुजुर्ग द्वार पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन लिखना जरूरी नहीं, सिर्फ जो पूछा उतना ही का जवाब देना। आगे में कह रहा है कि चौथा नंबर में, कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? निसाब कहते हैं बुक को। समझ में आ रही बुक? ये समझ में आ रही बात? कह रहा है निसाब किसको बोलते हैं? बुक को बोला जाता है कि आपके ये बुक में, आपकी किताब में कमर जहां का कौन सा अफसाना लिखा हुआ है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कटी हुई शाख, यही ना है, यही ना पढ़ रहे हैं। 5वें नंबर में, कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? तो कमर जहां मैंने बताया था सबसे पहले वो कहां उस्ताद थी? सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर। कौन सा? सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर, यहीं से ये उस्ताद हैं। आगे, कमर जहां के हालात जिंदगी पर 5 जुमले लिखे। यहां पर ये पूछा गया है कि कमर जहां के हालात जिंदगी पर 5 जुमले लिखे। तो आपको लिखने का सादा, सिंपल और आसान तरीका बताऊं, यह है कमर जहां की पैदाइश सबसे पहले लिखेंगे। कमर जहां की पैदाइश तकरीबन 1951 या 52 में हुई। उनका गांव समस्तीपुर जिला के मर्दम खेज गांव बुजुर्ग द्वार है। उनका आबाई वतन भी यही है। उनके अब्बू का नाम सैयद अताउल हक है। उसके बाद उसने क्या क्या, अब क्या लिखना है कि उन्होंने क्या किया है, पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD किया। उर्दू अदब से फितरी दिलचस्पी होने की वजह से जमाना तालिब इल्मी से ही उन्होंने लिखना पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो आप ये अपने जहन से लिखेंगे। आगे पूछा गया यहां पर, कमर जहां की तालीम व तदरीस के बारे में मुख्तसर बयान कीजिए। यहां पर कह रहा है कि तालीम व तदरीस के बारे में, ये दूसरा नंबर सवाल है ना। कमर जहां की तसानीफ की फहरिस्त मौजू के एतबार से लिखिए। यानी इन्होंने किस मौजू से, मौजू कहते हैं टॉपिक को, एक बात याद रखें, उर्दू ग्रामर में मौजू अलग होता है और यहां पर मौजू टॉपिक को कहा जाता है। मौजू का माना होता है टॉपिक, उन्वान, बात एक ही है। कह रहा है कि ये जो मजमून लिखा गया है ये किस टॉपिक पर लिखा गया है, इसको अपने जहन से बताइए। नंबर 3 में, कमर जहां की तालीम और तदरीस के बारे में, तो कमर जहां ने कितनी तालीम हासिल की, कहां तक पढ़ाई की, किस स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की, ये बारे में आपको बताना है। ज्यादा नहीं, बस 5 जुमले। बहुत ज्यादा हो गया तो 2 लाइन, इससे ज्यादा नहीं लिखिएगा, 2 से 3 लाइन बहुत हो गया। आगे कह रहा है उर्दू के किसी 5 अफसाना निगारों के नाम लिखें। तो 4 अफसाना निगार तो यही हो गए। सबसे पहले कौन है? शबनम कमाली। दूसरा है सुहेल अजीम आबादी। तीसरा है सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब। चौथा है कमर जहां और 5वां है, आप किसका ले लीजिएगा, 5वां निगार अजीम का ले लीजिए। 5वां चैप्टर है ना निगार अजीम का, तो आप लिख सकते हैं। तवील सवालात कहते हैं 5 नंबरी को। 5 नंबरी को तवील सवालात बोला जाता है। तवील का माना होता है लंबा। कह रहा कमर जहां के अफसाने के मौजूआत पर रोशनी डालिए। यानी कमर जहां ने जितने भी मौजू लिखे हैं और ये जिस मौजू में लोगों को बताती थी, जिस मौजू पे ये टॉपिक पे बना हुआ है कटी हुई शाख, उस मौजू पर आपको एक मजमून लिखना है। मजमून छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है। आगे कह रहा है कहानी का उन्वान कटी हुई शाख क्यों है, वाज़े कीजिए। यानी इसका मतलब क्या है, कटी हुई शाख किसको बोला जाता है? तो मैंने आपको तो पहले ही बता दिया था कि अगर कोई इंसान किसी का दिल तोड़ देता है, चाहे वो वालिदैन हो या रिश्तेदार हो या फिर कोई अदर इंसान हो, तो जैसे कोई शीशा टूट जाता है दोबारा नहीं जुड़ता, जैसे कोई पेड़ से उसकी ढल्ली को अलग कर दिया जाए वो नहीं जुड़ता, इसी तरीके से यहाँ पर इसी वजह से इसका नाम कटी हुई शाख रखा गया। क्योंकि एक लड़का है वो खलीजी ममालिक जाता है पैसे कमाने के लिए अपने वालिदैन को छोड़कर, उनकी वालिदा बीमार है, उनको कोई फिक्र नहीं। इसी तरीके से आप अपने दिमाग से लिख दीजिएगा। नंबर है 3 पे क्या लिखा है, मुहाजिर अदब की इस्लाह से आप क्या समझते हैं, क्या ये अफसाना इस जुमरे में है? मुदल्लल जवाब दीजिए। तो ये बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता है, 9 और आएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये आप सवाल छोड़ भी सकते हैं। नंबर 4 पे कहानी के मरकजी किरदार की जहनी व जज्बाती कैफियत को इख्तिसार में लिखिए। यानी कह रहा है इस कहानी में जिस तरीके से लिखा गया है, जिस किरदार को पेश किया गया, यानी एक लड़का है वो खलीजी ममालिक गया पैसा कमाने के लिए, क्यों गया, उसको क्या नीड थी पैसों की,
ہے نا, اور کیوں نہیں جانا چاہیے, ان سب باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے اور کیا کیجئے, ایک مضمون لکھیے بہت زیادہ, تو آپ 7 سے 8 لائن لکھیے. وہاں کا 7 سے 8 لائن لگ بھگ ہم کو میرے حساب سے یہ آدھا صفحہ سے زیادہ ہو جائے گا, سمجھے. تو اتنا بھی زیادہ نہ لکھیں کہ لگنے لگے کہ 10 نمبر کا ہے, اور اتنا کم بھی نہ لگے کہ لکھیے کہ ایسا لگے کہ 2 نمبر کا ہے. تو آپ کو اتنا ہی لکھنا ہے جتنا کا پوچھا گیا. اگر آپ سے 2 نمبر کا سوال پوچھا جا رہا ہے تو بہت زیادہ تو 2 سے 3 لائن لکھیں گے. اگر 5 نمبر کا سوال پوچھ رہا ہے تو بہت زیادہ تو 7 سے 8 لائن لکھنے ہیں, اس سے زیادہ ہم کو نہیں لکھنا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر سمجھ میں آیا ہے تو کامنٹ ضرور کیجیے گا, اور اگر کوئی بات پوچھنی ہے, کوئی سوال کرنا ہے, کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی تو کامنٹ کیجئے. میں انشاءاللہ تعالی بھرپور کوشش کر آپ کو اس کمنٹ کا جواب دوں گا, اور آپ میرا سپورٹ کیجئے, میں آپ کا سپورٹ کروں گا, اور دونوں مل کر 2025 میں 90 پلس نمبر ٹھوکنا ہے, اور لوگوں کو یہ دکھا دینا ہے کہ ہم بھی محنت کرنے والے انسان ہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. بس پھر سے وہی درخواست کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, اور اس کو آگے شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.